हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे we will learn chapter number 5 of your grammar, and that is use of non-finites, and its kinds are infinitives, gerunds, and participles. So before beginning infinitives, gerunds, or participles, I would like to tell you about the meaning of non-finites. First of all, you know that in English or in any language we use verb. What do we use? We use verb, and verb means action. And you know that word in English that shows time of an action is called a verb. इंग्लिश ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ word ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਂਡ verbs have been described in various categories. Here we will read about two categories of verbs, and that is one is two categories of verb. One is finite and other is non finite. Finites लिख लेने अपन, ठीक है? Finites and non finites. Now I will give you an example. The child cries loudly. You will see that here the subject is the child, verb is cries, and loudly is what is loudly? Is an adverb. Now I write another sentence. The children cry loudly. Now look what the difference I have made in these two sentences. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ sentences ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ difference ਕੀ ਹੈਗਾ। So difference ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ subject ਹੈ, here the subject is singular, ਆਹ ਵਾਲਾ subject ਕੀ ਹੈ? ਇਹ singular ਹੈ। In second sentence the subject is plural, ठीक, ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਵਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕਰਸ ਵਨ ਮੋਰ ਹੇਅਰ ਇਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਰਬ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਲੂਰਲ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਟੂ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ I like mangoes. Here the subject is I and verb is like, and mangoes is the object. Another sentence. He likes mangoes. Okay. ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ, and here likes. Now what differences you see in these two sentences? First difference is difference in subject. जो subject इत्थे I है, इत्थे की है? he है। और and difference in verb like and likes। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਰਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਆਈ ਹੀ ਮੀ ਯੂ ਵੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਨਾਉਨਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਉਨਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਰਬ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈਕ, ਇਹ ਲਾਈਕਸ।
ये चेंज हो गया है। ठीक है, हुण इहदा आपां रिजल्ट की कड्ढिया दोनों चीज़। ठीक है, दोनों जो गल्लां ने टू थिंग्स व्हाट द डिफरेंस कि verb changes when the number and pronoun of subject changes ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈ these relate to these changes, these categories। ਓਕੇ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਬ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਰਾਈਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਕਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਆਫ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰਬ ਚੇਂਜਸ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਬਸ ਨੂੰ ਦੀਜ਼ ਵਰਬਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, now our topic is our main topic is that is non-finite। now what about non-finites? For example, she I write a sentence, she wants to make a picture। okay, I want to make a picture। देखो दो सेंटेंस लिखे मैं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਵਾਂਟਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ, ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ ਐਨਦਰ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਇਨ these two sentences that is make। देखो ठीक है, make ये verb है, but it does not change whether the subject of these sentences change। जे subject change होया ठीक है, पर ये जो verb है ये change नहीं होया। ठीक है, ये जो verb है ये change नहीं होया, change किहड़ा होया आ वाला। ठीक है, इन्हों आपां की कहने फाइनाइट। हुण जिहड़े verb नहीं change होए ठीक है उन्होंने की कहना आपां नॉन फाइनाइट्स। की कहना इन्हों जिहड़े verb कदों चेंज नहीं होंगे वैन देयर इज चेंज इन सबजैक्ट ऑफ द सेंटेंस। जिहड़ा हैगा जदों सबजैक्ट जिहड़ा हैगा चेंज आती है तो वो जिहड़ा हैगा ये मतलब जिहड़े नॉन फाइनाइट्स है ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, दैट इज़ अ मेन डेफिनेशन एंड दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट्स। नाउ आई विल गिव you one more example। The boy runs to win। The boys run to win। Now I think you all must have seen the differences which I am going to tell you। In the beginning of the sentence the boy is subject and runs to win। In second sentence the subject is the boys and the verb is run and another verb is win। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਆ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ
ठीक है। ये प्लूरल नाल एस नहीं लाते आप, ठीक है। पर चेंज कितने नहीं आई, टू तो बाद जो आप क्योंकि विन की है वर्ब है, ठीक है। टू तो बाद जो विन है वो की है वर्ब, ये चेंज नहीं हुई। सो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਟੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਨੋਨ जो नॉन फाइनाइट है, इट हैज़ थ्री काइंड्स, ओके। फर्स्ट काइंड इज इन्फिनिटिव्स, सेकंड इज gerund, and third is participles, ठीक है। ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ, ਜੀਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਵਰਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਮੀਨਸ टू प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। टू प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इनू आप जो टू तो बाद जी फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होंगी है उन्होंने आप की कहना, इन्फिनिटिव कहना उन्होंने, ठीक है। अच्छा, ये आप चलो अगे तुहानूं डिस्क्राइब करूँगा कि कई बार आप जो है एक बेयर इन्फिनिटिव दो तरह के होंगे हैं। हाँ देखो, ठीक है, ये हो गया टू प्लस वाला, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म। एक होर काइंड है वो है इकली वर्ब की फस्ट फॉर्म होंगी है, ठीक है, इकली फस्ट की वर्ब फस्ट फॉर्म होंगी है, बट वो जोड़ा है टू नहीं लग्या होंदा, ठीक है, टू नहीं लग्या होंदा तो इन्हों आप कहड़ा कहने जो एज वर्ब कला हो पर वो एक इन्फिनिटिव का काम करता हो तो उन्होंने आप की कहने इत्थे मैं लिखदा, ठीक है, वेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। वो तो मैं डिस्क्राइब करूँगा अगे, ठीक है। पहला मैं तो ये समझा दूँ। दूसरी जो काइंड है जीरेंट, तो सुनिया होना, ठीक है। जीरेंट, जीरेंट मीन्स फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड इट वर्क्स एज अ नॉन। जो वर्ब के नाल ing लग्या, फस्ट फॉर्म के नाल ing लग्या होना, पर उन्हें जोड़ा है काम काहदा करना, फंक्शन काहदा करना, उन्हें एक्शन किहड़ा करना, नॉन का। तुहानूं पता पार्ट देरा 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 तरह के है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आम तौर पर जिमें आप कह दें कि आई एम, चलो मैं तुहानूं बाद समझाना, वो आई एम स्विमिंग है ना, मैं तैर रहा हाँ, तो की है स्विमिंग, मैं तैर रहा, काम कर रहा हाँ, ठीक है। जेकर आप ये बोलने कि स्विमिंग इज़ माई हॉबी, तो उत्थे की है स्विमिंग की बन गया नॉन, एज सबजैक्ट लिया ना। चलो मैं तुहानूं इहदे बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना वैसे, हाँ इत्थे करूँगा, इत्थे आई एम स्विमिंग, ओके। स्विमिंग इज़ माई हॉबी, ठीक है, ओके। हुण इस विच जिहड़ा जो स्विमिंग है, क्योंकि ये इत्थे स्विमिंग की है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ये एम तो बाद लग्या है, हेल्पिंग वर्ब तो बाद लग्या है, पर इत्थे की है ये एक वर्ब नहीं है, बल्कि वर्ब की फस्ट फॉर्म ing लग के एक एज सबजैक्ट है, की है, क्योंकि शुरू की है सबजैक्ट होंदा ना, ये इत्थे स्विमिंग की है एक वर्ब का काम कर रहे हैं। नो इन दिस सेंटेंस इत्थे काहदा काम कर रहे, एक सबजैक्ट का काम कर रहे, ठीक है। हुण जदों फस्ट फॉर्म के ing लग के एज नॉन एज सबजैक्ट काम करे, ये ऑबजैक्ट भी हो सकता, जिवें आ देखो, आई लाइक स्विमिंग, ठीक है, आई लाइक स्विमिंग, ये आई है सबजैक्ट, ये वर्ब है, ये की है
ऑब्जेक्ट है। इत्थे की है ये भी इत्थे नॉन का काम कर रहा है। ठीक है, जदों समझ गए तुसीं फर्स्ट फॉर्म के नाल आई जी लग्या होवे पर कोई नॉन का काम कर रहा है एस उन्होंने प्लेसमेंट तो कितने होंदी है सेंटेंस में जां सबजैक्ट जां फिर देखो ऑब्जेक्ट होंदी है उदों उन्हें आपां की कहना जीरेंट कहना। ठीक है, नैक्सट जो पार्टिसिपल है पार्टिसिपल्स मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इट फंक्शनस एज एन एडजैक्टिव इन द सेंटेंस। जदों जिहड़ा हैगा जिहड़ी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सेंटेंस विच एज एडजैक्टिव जिहड़ा हैगा वो काम करे। आ देखो जिवें देखो तुहाडी बुक विच मैं तुहानूं कहा सीगा पढ़न वास्ते, पता नहीं तुसीं पढ़िया कि नहीं पढ़िया सारा पार्टिसिपल्स बारे जिहड़ा हैगा जां नॉन फाइनाइट्स बारे काफ़ी बहुत डिटेल च दिता मैं। तुसीं बुक में जरूर जिहड़ा हैगा तुसीं ना बुक जरूर पढ़िया करो। जे सही नंबर लैने तो जे सही मैने में तुसीं जिहड़ा हैगा कुछ अच्छे बच्चे बनना तुहानूं ग्रामर पढ़नी पैनी है। ठीक है, हाँ जी। आ देखो पार्टिसिपल्स हैगा ना, पार्टिसिपल्स भी अगे तीन तरह के हैगे, एक पास्ट पार्टिसिपल आ देखो, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल ते एक परफेक्ट पार्टिसिपल्स। हुण आ देखो मैं इत्थों तुहानूं समझा दिंदा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ते परफेक्ट पार्टिसिपल। हुण आ देखो ये की है स्टे प्लस आई एन जी, स्टे फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो नाल इहदे आई एन जी लग्या होया। ये की है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बट ये फंक्शनस काहदा कर रहे हैं, एक एज एडजैक्टिव का जिहड़ा हैगा काम कर रहा है। ठीक है, एज एडजैक्टिव यूज़ कर रहे हैं इत्थे नूं। इहदे नाल ही देखो एग्जांपल देखो दे वर स्विमिंग इन रनिंग वाटर। आ देखो ठीक है, समझ गए ना तुसीं कि जिहड़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो फस्ट काइंड किहड़ी है उहदी प्रेजेंट पार्टिसिपल दी आ हैगी। ठीक है, इत्थे हुण जिहड़ा रनिंग है ये वाटर तो पहलां लगे है तो मतलब की है एडजैक्टिव है ये, अंडरस्टैंड। ठीक है, हुण सैकेंड की है दूसरी दी काइंड वो क्या पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पर वो काम काहदा कर रही है एक ਉਹਦਾ एज एडजैक्टिव का जिहड़ा हैगा वो काम कर रही है। चलो ये इस सेंटेंस में मैं तुहानूं अगे दसना नैक्सट पेज ते होना। आ देखो आ पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आ थर्ड फॉर्म हैगी है ही पिकड अप द ब्रोकन प्लांट्स, ब्रोकन प्लेट्स। आ ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बट ये लगी कदों पहला एक नॉन तो पहला लगी है इसलिए इट इज़ फंक्शनिंग एज एन एडजैक्टिव, एक एडजैक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, इसलिए इन्हों आपां की कहना पास्ट पार्टिसिपल। और नैक्सट एक होर है परफेक्ट पार्टिसिपल, तुहानूं दसदा मैं इहदी। आ देखो परफेक्ट पार्टिसिपल्स जिवें हैज़ हैव आपां लगाने ना परफेक्ट टेंसेस विच, परफेक्ट पार्टिसिपल्स भी जिहड़ा हैगा हैविंग लग्गिया हुंदा। की लग्गिया हुंदा, हैविंग तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुंदी है बट वो एज एक नौ दूसरा एडजैक्टिव फ्रेज का काम जिहड़ा है कर रही हुंदी है। ठीक है, जिवें आ देखो कि इहदी एग्जांपल है हैविंग लर्नड माई लैसन आई स्लैप्ट पीसफुली। ठीक है, हुण हैविंग एक है तो एडजैक्टिव है ਆਪਾਂ ना ये एडजैक्टिव है। ठीक है, ना आप कल्ले नूं इनू एडजैक्टिव कहना ना माई। ठीक है, पूरा एक्शन के लैसन याद करते हुए। ठीक है, लैसन याद करते हुए मैं आराम नाल सौ गया। लैसन याद करते हुए एक एडजैक्टिव विशेषण है ये। ठीक है ना, एडजैक्टिव का काम कर रहा है पूरी फ्रेज जी हैविंग लर्नड, हैविंग तो बाद थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, यदा मतलब वो ये हैगा परफेक्ट पार्टिसिपल्स। सो मेरे ख्याल से जो जिन्ना तुहानूं मैं अज समझाया है नॉन फाइनाइट्स जी काइंड्स है वो तुसीं आई होप एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव लर्नड इट वेल एंड इन एन elaborated way. So if you have any doubt, any questions regarding non finites, you can ask me. Uh, ask me by sending your queries or you can call me. Know what homework I am giving you today, that is many of students have solved this exercise very well and good to them. Today you will write these exercises. Exercise number 6,
एंड एक्सरसाइज नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 6 है, ठीक है। देखो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ फाइनाइट नॉन इनफिनिटिव है वो ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾइज है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ है ਇਹ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, लेट अस वर्क हार्ड टू विन, ठीक है। बेयर इनफिनिट, लेट अस वर्क, वी मस्ट गो फॉर फाइनल, ही ही मेड हर हैप्पी, ये बेयर इनफिनिटिव है, ठीक है। एक आ एक्सरसाइज करनी तुसीं, एक तो बाद एक्सरसाइज नंबर 6, 7, 8 एंड 9 जो है ये भी तुसीं करनी है अज, ठीक है। 9 तक अज तुसीं जो काम करना है, जिहड़ा एक मैं तुहानूं ये समझाया है, इनू चंगी तरह समझना है तो तुसीं आ एक्सरसाइज नंबर 9 तक इनू जिहड़ा कंप्लीट करना है। अगे जिहड़ा हैगा ज्वाइन किवें करना यूजिंग इनफिनिटिव, वो तुहानूं मैं जिहड़ा है कल समझावांगा। थैंक यू। हाँ, ये है कि बच्चों देखो स्कूल का तुहानूं पता ही है, मैं असीं बार बार तुहानूं यही समझाते रहने हैं कि स्कूल पता नहीं कदों लगने, ठीक है। सो इसलिए ना अपना जो होमवर्क है, ठीक है, उन्होंने डेली कराया करो, डेली करके मैनू सेंड भी जरूरी करना हुंदा, ठीक है। कोई एडा वड्डा काम नहीं हैगा ये। सो जिन्ना तुसीं देखो +2 के बोर्ड की क्लास है, इनू वध तो वध पढ़ो इनू, ठीक है। जो भी टीचर्स तुहानूं काम दिंदे सारा जिहड़ा है काम उन्होंने जिहड़ा हैगा ध्यान नाल पढ़िया करो, ठीक है। ओके।